Union government sets goal to formally recognize 1 lakh tribal healers as partners in the health services. 1 lakh tribal healers as partners अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अगर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कुछ नहीं कर पा रहा तो संशय के दाल में कुछ काला जरूर है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द मिनिस्ट्री दे हैव इनवाइटेड द ट्राइबल हीलर्स। ट्राइबल हीलर्स से पहले हेल्थ के मामले में बहुत कुछ करना बाकी है। फर्स्ट थिंग इज देयर राइट्स इन द फॉरेस्ट। लाइक से फॉर एग्जांपल इन आवर चाइल्डहुड डेज हमारे यहाँ तो कभी न्यूट्रिशन वाला मुद्दा नहीं उठता था और देश कोई बहुत रईस भी नहीं था। बट हवा भी साफ थी, पानी भी साफ था, वेजिटेशन भी साफ थी, सब्जियां भी और फल भी और गेहूं और friends, after very long, we have a news. I should say it's a good news. I don't know how long it will sustain. Pertains to health with respect to tribals. We already know that more than 70% tribal women they are anemic, and if you talk about PVTGs, it is maybe 80% or more. तो पहली बार जो है लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। That is the news, and it came only in Hindu the day before. What does it say? It says Union government sets goal to formally recognize 1 lakh tribal healers as partners in the health services. 1 lakh tribal healers as partners in the health services. Addressing the gathering was there by Ministry of Tribal Affairs in Hyderabad on Friday. Tribal Affairs Minister Joel Oram urged state governments to explore market linkage and partnership with the FMCG and the pharmaceutical companies to generate job opportunities in the domain of traditional medicine. Mr. Oram said that the sessions by experts from institutes like AIMS, WHO, ICMR, Health Ministry, Ayush go a long way in enhancing technical knowledge and services deliveries capacities of tribal healers. At the event, the Ministry of Tribal Affairs signed a memorandum to understand with ICMR Regional Medical Centers, Bhubaneswar, to set up first National Tribal Health Observatory, which will be known as the Bharat Tribal Health Observatory. This collaboration will institutionalize tribal disaggregated health surveillance, implementation research, and research river disease elimination initiative in tribal districts with focus on malaria, leprosy, and TB, addressing a long-standing national gap in the tribal-specific health data analysis and evidence-based planning, read a statement from the center. Over 400 healers from the scheduled tribe communities across the country attended the event. So, ये तो है news. Now, I have to say something about the minister, Joel Oram. I'll say very, very dedicated, very active minister he is. In his last tenure, during Vajpayee's government. He was in the same position. We held a seminar in EFCS Lucknow, or we sought 1 lakh grant from the ministry. Grant didn't reach, लेकिन वो जो सोविनियर था उसके कवर पेज पे हमने लिख दिया था, हाँ, with grant from this. So I met the minister. उन्होंने मेरे को घर पे ही बुला लिया सुबह के टाइम पे. He was in his 30s, I think, at that time, had two sons also there. Very ordinary kind of house it was. And along with him only, I went to the office and he called the secretary कि इनका ये मसला है. Secretary said, सर ये तो कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी, तो होने के बाद तो जो है कोई पैसे देते नहीं है. Then minister asked him, do we have any precedence where the fund was given later on? सेक्रेटरी ने बताया हाँ मुंबई में हुई थी तो हमने बाद में दिया था. तो कहा ठीक है उसी प्रेसिडेंस पे इनको दे दो. इट टुक अ फ्यू सेकेंड्स टू गेट द जॉब डन. सो दैट काइंड ऑफ एक्टिव मिनिस्टर और अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अगर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कुछ नहीं कर पा रहा तो संशय के दाल में कुछ काला जरूर है. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द मिनिस्ट्री दे हैव इनवाइटेड द ट्राइबल हीलर्स. ट्राइबल हीलर्स से पहले हेल्थ के मामले में बहुत कुछ करना बाकी है. First thing is their rights in the forest.
their nutrition, their diets, it all depends on the nutritional value of their food, the food that is there in the forest. और फॉरेस्ट में जाने का उनका रिस्ट्रिक्शन जो खत्म नहीं होगा, मिनिस्ट्री को उस बात के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। सेकेंड थिंग इज, जैसे बिरहोर जो है हंटर गैदरर है, मैं स्टडी कर रहा था, वो खरहा पकड़ा, उसने टॉर्टोइस पकड़ा, and the man wanted to sell it in the market, though it could have been a nutrition for himself, but they cannot afford that luxury, तो उसको बेचेंगे। तो जो कुछ भी वेजिटेशन फॉरेस्ट में अवेलेबल है, उस पे ट्राइबल्स का, खासतौर से पीवीटीजीज का पहला राइट होना चाहिए। ये मुद्दा पहले उठाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी वैरायटी है न्यूट्रिशन की, वेजिटेशन की, अब ऐसी तो दुनिया में कहीं भी नहीं। The kind of variety that we have, if you realize, like say for example, in our childhood days, हमारे यहाँ तो कभी न्यूट्रिशन वाला मुद्दा नहीं उठता था, और देश कोई बहुत रईस भी नहीं था, बट हवा भी साफ थी, पानी भी साफ था, वेजिटेशन भी साफ थी, सब्जियां भी, और फल भी, और गेहूं, और जबकि मेरी ये बुक जो है मेरी, ये बता चुकी है कि हमारे यहाँ जो है करीब 25% के करीब जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो चुकी है गेहूं और चावल की, और अनदर 20-25 ईयर्स में फर्दर हाफ हो जाएगी। तो उस तरह से अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं रहेगी तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को घास खिला रहे हैं। मिनिस्ट्री को एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। दिस इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव स्टेप, और उनकी बात सुन करके, साथ में आयुर्वेद की नॉलेज के साथ, साथ में जितने भी फोक हीलर्स अदरवाइज है, नॉट नेसेसरीली ट्राइबल्स, उनको भी मिला करके, और फिर जो है नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी चाहिए हेल्थ को लेकर के। और हेल्थ का मतलब सिर्फ दवाइयाँ नहीं होता, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हेल्थ जो है, ओवरऑल ध्यान रखने की बात है। और मेरा ख्याल ये है कि मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इसको जो है कोने तक ले आया जाया जाए, हालांकि होता नहीं है अभी। 2-3 साल पहले आई वाज इन रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अशोक प्रधान वाज द हेड। दे इंट्रोड्यूस मी टू द ट्राइबल एक्सपर्ट्स, they call them tribal experts professors in their folk arts and including in their medicine। और आज ही मैंने फोन करके पूछा कि उनका क्या हाल है, कहते वो तो उसी वक्त था, उसके बाद किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। द नेक्स्ट हैड डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट। सो अगर एंथ्रोपोलॉजी वालों का यही एटीट्यूड रहेगा तो बाकियों का तो होगा ही। देर इज नो डेर्थ ऑफ नॉलेज, whether you talk about the Himalayan tribes, or you talk about the tribes of Chotan Nagpur, or you talk about the eastern western Ghats, anywhere you talk about, there is a need। हमने शुरू तो किया है ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लोर करने का, पर जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं एट स्नेल स्पेस, मुझे नहीं लगता कि उसमें जो है बहुत जल्दी कुछ बहुत कुछ होने वाला है। There is a need to explore the wealth of the country and to globalize it, internationalize it, और also उस तरफ का टूरिज्म हम डेवलप करें, ताकि लोगों की इनकम जो है, हेल्थ के साथ साथ इनकम भी इम्प्रूव होगी, तो लोगों की परफॉर्मेंस हर मामले में बेहतर होगी। ओवरऑल जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इन सब के लिए अगर प्रोग्रेस करना है तो हमें मेडिसिन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और टूरिज्म, इन सब को बढ़ाना होगा। थैंक यू।